آج کی ویڈیو میں ایک آسیب زدہ مکان کی پراسرار کہانی۔ آج سے 15 برس بیشتر کی بات ہے، ہم لوگ اس وقت سکھر میں رہتے تھے۔ میرے سسر کی کچھ زمینیں تھیں، وہ زندگی بھر انہی پر گزارا کرتے رہے تھے۔ جو فصل ملتی خود کراچی کی منڈی میں لے جاتے، واپسی پر وہاں سے کچھ ایسا سامان خرید لاتے جو یہاں کے لوگوں کے کام آتا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک دکان کھول لی تھی۔ اس دکان کو میرے شوہر چلاتے تھے۔ باقی 2 نندوں کی شادی ہو چکی تھی اور 3 جیٹھ مختلف جگہوں پر نوکر تھے، مگر ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اچانک میرے سسر کو کینسر جیسے موذی مرض نے آ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سال 6 ماہ میں ختم ہو گئے۔ سسر کا مرنا تھا کہ گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ میری ساس زندہ نہیں تھی، مگر یہ سسر کا حسن انتظام تھا کہ سارے بھائی ایک جگہ رہتے تھے۔ ایک جگہ کھانا پکتا اور کسی قسم کی کوئی رنجش پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر سسر کے مرتے ہی ہر معمولی باتوں پر دیورانی جٹھانیوں میں تکرار ہونے لگی۔ بھائی بھائی آپس میں لڑنے لگے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ مشترکہ گھر اور زمینوں کا بٹوارہ کر دیا جائے۔ میرے شوہر نے بہت کہا کہ زمین کے ٹکڑے مت کرو، اس طرح کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہاں، آمدنی برابر بانٹ لو، مگر آمدنی برابر بانٹ لیتے تو گھر کا کیا کرتے؟ بڑی جٹھانی کا کہنا تھا کہ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں زیادہ کمرے چاہیے۔ چھوٹی جٹھانی کا کہنا تھا کہ ان کے بچے زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ جگہ چاہیے۔ سب سے چھوٹی جٹھانی کا کہنا تھا کہ اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو کیا اسے ایک ہی کمرے میں قید ہو جانا چاہیے؟ صرف میں اور میرے شوہر ان تمام جھگڑوں سے دور تھے۔ میرے شوہر احسان بچپن میں کافی بیمار رہے تھے، لہٰذا وہ اتنا نہیں پڑھ سکے تھے جتنا ان کے بھائی۔ چونکہ پڑھائی کم تھی، لہٰذا نوکری بھی ڈھنگ کی نہیں ملتی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے سسر نے احسان کو دکان پر بٹھا دیا تھا، اور جب تک سسر زندہ رہے اس دکان کی آمدنی ہمیں ہی دیتے رہے۔ مگر ان کے انتقال کے بعد میرے تینوں جیٹھوں اور جٹھانیوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہوا کہ باقی بھائی نوکری کرتے ہیں اور انہیں صرف زمینوں سے حصہ ملتا ہے، مگر احسان کو دکان کی آمدنی بھی مل جاتی ہے۔ مال تو ابا جی کا ہی ہے نا، یہ بات میری چھوٹی جٹھانی اکثر کہتی تھی۔ آخر کار روز روز کی چخ رنگ لائی۔ زمین، گھر اور دکان کے حصے بکھرے ہو گئے۔ ہمیں رقم کم دی گئی، کیونکہ اگر برابر رقم دی جاتی تو باقی تینوں بھائیوں کے مکان نہیں بن پاتے۔ میرے خیال کے مطابق بڑے جیٹ پھر بھی تھوڑی بہت انسانیت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، احسان تم یہ رقم لے کر کراچی چلے جاؤ، تمہیں جو رقم کم دی گئی ہے اس کے بدلے کراچی میں ابا جی نے بطور سٹور جو دکان رکھی تھی، تم اس پیسے سے اس میں مال ڈال لو۔ فی الحال دکان کے قریب ہی کرائے پر کوئی چھوٹا سا مکان لے لینا، تمہیں دکان چلانے کا کافی تجربہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم اپنا خود کا گھر خرید سکو۔ گو یہ ناانصافی تھی، دکان اتنی کم قیمت کی نہیں تھی جتنی کہ رقم میں کمی کی گئی تھی۔ ہمارے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، پھر ایک پرانی جگہ، جانا پہچانا شہر اور لوگوں کو چھوڑ کر ایک دم کسی دوسری جگہ جا کر زندگی شروع کرنا کافی مشکل کام تھا۔ یہ بھی خبر نہیں تھی کہ دکان چلے گی بھی یا خسارے میں جائے گی، کیونکہ سنا تھا وہ دکان شہر میں نہیں بلکہ شہر سے کافی دور ایک غیر آباد سی جگہ پر واقع ہے۔ وہاں زیادہ آبادی نہیں ہے۔ دوسرا، وہاں بہت ہی غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا پرچون کی دکان کے سوا اور کسی چیز کی دکان کھولنا بھی مشکل تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ کسی اور نے پرچون کی دکان نہ کھول رکھی ہو۔ غریب علاقے میں ایک دکان ہی ضرورت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بہرحال میں اور میرے شوہر دونوں ہی صابر اور شاکر قسم کی طبیعت رکھنے والے تھے، سو اس فیصلے پر سر جھکا لیا۔ احسان کا کہنا تھا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے اور انسان اسی جگہ جانے پر مجبور ہوتا ہے جہاں اس کا آب و دانہ لکھا گیا ہو۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی اور 2 بچے اپنا آبائی مکان، محلہ اور لوگ چھوڑ کر کراچی جیسے بڑے شہر میں آ گئے۔ احسان دکان دیکھنے میرے ساتھ ہی گئے۔ دکان تھی تو کافی بڑی، مگر جگہ بہت خراب تھی۔ آس پاس اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، ذرا فاصلے پر کچی پکی آبادی تھی اور وہاں سے کچھ دور پہلے سے ہی چھوٹی کئی دکانیں موجود تھیں۔ احسن یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے، ہم اگر شہر میں گھر کرائے پر لے کر رہیں اور دکان یہاں چلائیں تو نقصان ہی ہوگا۔
मेरे लिए इतनी दूर आना जाना मुश्किल होगा और दुकान से लगता है कि शायद ही कोई आमदनी हो। ऐसा करते हैं, दुकान बेच देते हैं। इस रकम से शहर में ही कोई छोटी मोटी दुकान खरीदने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कह सकती थी? एहसान सही कह रहे थे। फिर हम दोनों वापस शहर आ गए। शहर में हमने मकान किराए पर नहीं लिया था, बल्कि एहसान के एक दोस्त के घर में आर्जी क़याम कर रखा था। उनके ये दोस्त, जिनका नाम अब्बास था, बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब हमने उन्हें दुकान के बारे में बताया तो बोले, हाँ, ऐसी सूरत में तो दुकान फ़रोख्त कर देना चाहिए। अगले रोज़ अब्बास साहब एहसान के साथ उस जगह गए। लोगों से वहाँ की दुकानों की कीमत और फ़रोख्त मालूम की, मगर पता चला कि छोटी दुकानों की ना सिर्फ मांग है बल्कि कीमत भी अच्छी खासी है। मगर एहसान की दुकान की कोई कीमत नहीं है, और इसकी वजह दुकान के साथ बना वो घर है जहाँ से आधी रात को अक्सर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ में ऐसी फरियाद होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ किसी आसेब का साया है। ये घर मुद्दतों से खाली पड़ा है। मालिक मकान खुद भी इस घर को छोड़कर गए तो दोबारा नहीं आए। इस घर में रहने की उन्हें ये कीमत अदा करना पड़ी कि उनका बच्चा अगवा हो गया और फिर बीवी का हार्ट फेल हो गया। वो साहब होशो हवास से बेगाना हो गए। फिर उन्होंने घर किसी को किराए पर भी नहीं दिया और ख़ुद शहर में कहीं रहने लगे। ये दुकान जिन साहब की थी वो उसमें माल वगैरह रखते थे, यानी ये दुकान बतौर स्टोर इस्तेमाल होती थी। सुना है जिन साहब की दुकान थी उनका भी इंतकाल हो गया है। अभी पिछले दिनों उन साहब के 2 बड़े बेटे इस मकान को फ़रोख्त करने आए थे, मगर वो भी नाकाम होकर गए। यूं अब्बास साहब और एहसान उदास और परेशान सूरत लिए वापस आ गए। जब अब्बास ने ये बात बताई तो मेरे अंदर छन से कुछ टूट गया। मुझे बड़े जेठ की मोहब्बत याद आ गई। मैंने उस लम्हे एहसान को देखा। उनके चेहरे पर भी दुख ही दुख फैला हुआ था। मेरे दिल में उस लम्हे जाने क्या समाई कि मैं फ़ौरन बोली, हम दुकान नहीं बेचेंगे, हम इसमें माल भी डालेंगे और घर भी वहीं लेंगे। मगर भाभी, अब्बास साहब ने कुछ कहना चाहा। भाई साहब, अगर वहाँ कोई जिन भूत मौजूद हैं तो वो घर में हैं, दुकान में नहीं। हम दुकान के साथ कोई छोटा सा घर देख लेंगे। लोग खौमखा की कहानियाँ भी गढ़ लेते हैं। खुदा ने हमें पुराने घर, शहर और जगह से किसी न किसी मकसद के लिए ही निकाला है ना। अगर हमारे नसीब का रिस्क वहाँ नहीं पैदा हुआ तो फिर कुछ सोचेंगे। ये बात मैं इसलिए भी कह रही थी कि कराची में मेरे रिश्ते के एक नाना थे जिनकी दोस्ती बहुत बड़े आमिल से थी। मेरा ख्याल था कि अगर वहाँ ऐसा कोई मसला है तो नाना के दोस्त इस मसले को हल कर देंगे। मैंने उनके बारे में बहुत सुन रखा था कि वो घरों को जिन्नों भूतों से पाक करते हैं। एहसान को भी उन साहब का हवाला दिया कि हम उनसे कोई तावीज़ लिखवा कर दुकान में रखवा देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोई मुश्किल नहीं होगी और घर में रहने वाले आसेब भी हमें तंग नहीं करेंगे। हम नाना से कहकर उस घर के लिए भी तावीज़ ले लेंगे और उसके दरवाजे पर भी लटका देंगे। भूत प्रीत खुद ही भाग जाएंगे। लो भाई, सुना था कि औरतें बहुत डरपोक होती हैं, खासकर जिन भूत का नाम सुनकर तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ये है कि एहसान को उकसा रही हैं। अब्बास साहब ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये जिनों भूतों पर शुरू से यकीन नहीं रखती, ना उनसे डरती है। फिर इसके नाना के वो दोस्त सचमुच बहुत बड़े आमिल हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात हमें महसूस हुई तो हम उनसे रुजू करेंगे। और वैसे भी अब्बास भाई, दुनिया के तमाम जिनों भूतों से बड़ा जिन भूख है। फ़र्ज़ करें हम वो दुकान बेचने में कामयाब हो भी जाएं तो अव्वल तो ज़्यादा रकम नहीं मिलेगी, और जो मिल भी गई तो एहसान के तीनों भाई आ पहुँचेंगे, क्योंकि अपनी दानिश में तो वो बाला ही बाला उसे बेचने आए थे। अब अगर बिक गई तो हो सकता है पैसे लेने के लिए कोई जवाज़ घर लें। बड़े भाई ना से ही दोनों छोटे मसला पैदा कर देंगे। फ़िलहाल तो वो मुतमईन है कि दुकान बिक नहीं सकती। अगले रोज़ मैं फिर एहसान और अब्बास साहब के साथ गई। मैंने वो मकान भी देखा जहाँ से आधी रात को बच्चे के रोने और चीखने की आवाज़ें आया करती थीं। बाहर से तो घर बहुत अच्छा और कुशादा महसूस होता था। हमारी दुकान से मुत्तसिल कई और दुकानों की बुनियादें खुदी हुई थीं, मगर शायद आसेब ज़दा घर की वजह से लोगों ने ये दुकानें नहीं बनाई थीं। दुकानों से हटकर भी कई खाली प्लॉट थे, मगर ये प्लॉट इसलिए भी खाली थे कि मालिकान मुल्क से बाहर थे। मैंने एहसान से कहा, इस घर की चाबी मिल जाए तो इसे अंदर से देखते हैं। मेरी बात के जवाब में उस इलाके का एक शख्स बोला, चाबी तो है, सामने वाली गली में उन साहब के कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं। जिन साहब का ये घर था वो चाबी उनको दे गए थे और कहा था कि तुम बेशक इस घर में रहो, मगर वो साहब चंद हफ्तों से ज़्यादा नहीं रह सके।
आधी रात को दरवाज़ा पीट पीट कर किसी बच्चे के रोने की बड़ी दिलसोज आवाज़ आती थी, लिहाजा वो इस घर को छोड़कर वहाँ रहते हैं। उसने उन साहब के घर की तरफ इशारा किया। चाबी लाइए उनसे, अब्बास भाई बोले। अब के अब्बास भाई को भी ऐसा घर देखने का बड़ा तजस्सुस हुआ। थोड़ी देर बाद वो साहब जिनके पास चाबी थी खुद बिना चाबी के यहाँ पहुँचे। मैंने उनसे पूछा, आप क्या कहते हैं भाई इस घर के बारे में? ये घर बहुत अच्छा है, मेरे कज़न ने बड़ी मोहब्बत से इसे बनाया था। मेरा तो बस वैसे ही यहाँ दिल घबराया तो मैंने छोड़ दिया। मुझे तो कोई आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी। हाँ, लोग कहते हैं तो खुदा मालूम, मैंने तो कभी खैर कोई आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा भला घर है, किराए पर जा सकता है, मगर लोग बातें बनाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। उन साहब ने अटक अटक कर कहा, जिनकी आंखें उनकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रही थीं, मगर लालच उनकी बातों से अयां थी। उन्होंने एहसान को चाबी दी और ख़ुद अंदर जाने की जहमत नहीं की, बल्कि बहाना करके फ़ौरन ही चले गए। एहसान ने घर खोला। मैं दुरूद शरीफ, सूरह नास वगैरह पढ़कर अंदर दाखिल हो गई। घर वाकई लाजवाब था, बहुत अच्छा, कुशादा, हवादार। हमें घर में दाखिल होते देखकर कुछ तजस्सुस के मारे नौजवान भी अंदर आ गए। कुछ बुज़ुर्ग भी शामिल हो गए। बुज़ुर्गों ने बताया कि चंद साल पहले ही ये घर तामीर हुआ है। असल में यहाँ एक नई आबादी की बुनियाद पड़ने वाली थी, मगर कुछ प्लॉटों पर झगड़ा हो गया और स्कीम बनाने वालों ने काम अधूरा छोड़ दिया। अभी तक मामला सुलझा नहीं है, वरना तो यहाँ एक बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी। दुकान के पीछे कई सौ फ्लैट्स बनना थे, इसीलिए इन साहब ने यहाँ घर बनवा लिया। घर 2 मंजिला था। ऊपर की मंजिल में 3 कमरे, बिमा अटैच बाथ, पीछे की तरफ एक स्टोर था। उस स्टोर में काट कबाड़ पड़ा था। निचली मंजिल पर 2 कमरे, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम था। किचन बहुत बड़ा था। किचन से मुल्क भी एक स्टोर था, उसमें भी काट कबाड़ भरा था। चूहे दौड़ रहे थे। मालूम होता था कि वो साहब उजलत में गए हैं और चंद ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी सामान स्टोर में डाल गए हैं। उस स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। कुछ बिस्तर, कुछ डब्बे और कुछ दूसरी घरेलू अशिया बेतरतीब मिट्टी से हटी हुई पड़ी नजर आई। मैंने पूरा घर देखा। किसी भी कमरे, किसी भी बाथरूम या स्टोर में कोई भी गैर मामूली बात नज़र नहीं आई। मैंने उस नज़र से ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ कमरों में झांका कि कोई कमरा साफ़ सुथरा तो नहीं है, क्योंकि सुना है जिस घर में जिन्नात हों वहाँ बाहर कचरे के ढेर होते हैं, मगर कमरे गैर मामूली तौर पर साफ़ होते हैं। बाथरूम में उनके बच्चे नहाते, शोर मचाते मिलते हैं, और ऐसे घर में किसी को दाखिल होने से रोकने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर वो लोगों को डराते हैं। लोग भी डर जाते हैं और मकान के करीब से भी होकर नहीं गुजरते। वो साहब सच कहते हैं, इस घर में कुछ भी नहीं है एहसान। तो फिर बच्चे के रोने की आवाज़? यार, इत्तफाकन आस पास कहीं आधी रात को कोई बच्चा रोया होगा तो लोगों ने कहानी बना दी होगी। अगर घर कम किराए पर मिल जाए तो हम ही ले लेते हैं ना ये घर। अब्बास साहब के साथ कई लोग हैरान होकर कहने लगे, हाँ क्या ख़राबी है, कुरान ख्वानी करा लेंगे, यासीन शरीफ का ख़त्म करवा देंगे और नाना के उन बुज़ुर्ग दोस्त से तावीज़ ले आएंगे। मेरा दिल कहता है एहसान यहाँ कुछ भी नहीं है। ये अफवाह सारे इलाके में फैल गई कि हम लोग वो घर किराए पर लेना चाहते हैं। कई लोगों ने मना किया, कई ने डराया, मगर मैंने भी सोच लिया कि घर ज़रूर लूँगी। दुकान साथ ही होगी, एहसान करीब के करीब रहेंगे। ये खबर उन साहब तक भी पहुंच गई जिनके पास चाबी थी और जो सचमुच इसे किराए पर चढ़ाना चाह रहे थे। मगर घर चूँकि आसेब ज़दा मशहूर था, इसलिए ना तो उन्होंने एडवांस मांगा, ना ही ज़्यादा किराया। बहुत माकूल किराए पर बात तय हो गई। घर आकर एहसान बोले, दरअसल मैं ख़ुद भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन महज तुम्हारी वजह से खामोश हो गया था, वरना मेरा अपना इरादा भी यही था कि वो घर किराए पर लेकर दुकान खोल ली जाए। चंद दिन बाद ही हम उस घर में आ गए। हफ्ता भर तक मैंने सफाई सुथराई की। जूं जूं घर साफ़ होता गया, घर में रौनक बढ़ती गई। यही नहीं, घर में सुकून भी महसूस हो रहा था। वो तमाम बातें जो उस घर से मुतल्लिक मशहूर थीं गलत साबित हुईं। 1 हफ्ते मुसलसल सफाई के बाद मैं कुछ थक गई। ऊपर की मंजिल का स्टोर और किचन का स्टोर रह गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि वहाँ कुछ सामान पड़ा था जो उन साहब को देना था, जिनसे चाबी ली थी। मुझे सुस्ती आ गई, लेकिन 2-4 दिन बाद ऊपर का स्टोर खाली कर दिया। अब सिर्फ किचन का स्टोर रह गया था। उसका दरवाज़ा खुला रहता था। मैंने किचन में बाकायदा खाना पकाना शुरू नहीं किया था, ज़्यादातर बाज़ार से खाना आ रहा था। मैं चाह रही थी कि पहले स्टोर साफ़ कर लूँ, फिर किचन ठीक करूँ।
उस रात कुछ खाना बच गया था, फिर सुबह के लिए दूध, चीनी वगैरह भी मंगाई थी। वो मैंने किचन के तख्ते पर रखकर इस ख्याल से स्टोर का दरवाज़ा बंद करना चाहा कि कहीं कोई चूहा वगैरह इधर ना आ जाए, क्योंकि स्टोर अरसे से बंद पड़ा है। कीड़े मकोड़े और चूहे हो जाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। चूहे तो मौजूद थे ही। दरवाजे के आगे एक लकड़ी और कुछ फालतू चीज़ें इस तरह पड़ी थीं कि दरवाज़ा पूरा बंद नहीं होता था। मैंने वो चीज़ें हटाईं और दरवाज़ा बंद करना चाहा, फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, दरवाजे के पट के नीचे झांका कि कहीं कोई लकड़ी पत्थर तो नहीं फंस गया, मगर वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मैंने फिर दरवाज़ा ज़ोर से खींचा तो महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाज़ा पकड़ा हुआ हो, मगर झटके से दरवाज़ा छूट गया हो, लेकिन दरवाज़ा फिर खुल गया। बात मेरी समझ में नहीं आई। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं थक भी गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और दूध और खाने को अच्छी तरह ढांप कर आ गई। किचन का दरवाज़ा लाउंज में खुलता था और मैं आजकल लाउंज में सो रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा आती थी। लाइट भी सारी रात जलती थी, क्योंकि बच्चों को अंधेरे में सोने की आदत नहीं थी। सुबह हस्बे मामूल मैंने काम किया और सोचा कि स्टोर शाम को साफ़ करूँगी, मगर शाम को भी मोहलत नहीं मिली। रात को दोबारा मैंने देखभाल कर दरवाज़ा बंद किया, मगर फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। इस मर्तबा मैंने पूरी कुव्वत सर्व करके दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मुझे ऐसा करते हुए महसूस तो हुआ कि किसी ने कमज़ोर सी मुज़ाहमत की है, मगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने एहसान से भी यूं ही उस दरवाज़े का तस्करा किया तो वो बोले, अरे मैंने भी कई दफ़ा उस दरवाज़े को बंद किया है, मगर हर बार ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा पकड़े हुए है, मगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर देखा तो थोड़ी देर बाद दरवाजे को खुला पाया। मैं समझा कि शायद तुम खोल देती हो। नहीं, मैंने तो कल रात को बंद करने की कोशिश की थी या आज, मगर आज मैंने कुंडी लगा दी है, अब दरवाज़ा बंद है। इस बात को अभी 1 घंटा गुजरा कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि 7-8 बरस का बच्चा है। मैंने चौंक कर अपने बच्चों पर निगाह दौड़ाई, मगर वो दोनों तो सो रहे थे। आवाज़ तेज़ हो गई, एहसान भी उठकर बैठ गए। ये बच्चा कहाँ रो रहा है? वो बोले। लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे इस घर के बारे में सुनाई हुई कहानियाँ याद आ गईं। ओ मेरे खुदाया, तो वो सारी बातें सच थीं। मैं बुड़बुड़ाई। एहसान भी परेशान दिखाई दे रहे थे। आम तौर पर बच्चे के रोने की आवाज़ से डर नहीं लगता, मगर चूंकि उस आवाज़ से कई कहानियाँ मंसूब थीं, इसलिए कुछ पुरअसरारियत महसूस हो रही थी। आवाज़ की सिमत का तायुन किया तो वो आवाज़ किचन से आती महसूस हुई। मैं और एहसान एक साथ उठे। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं नाना के दोस्त से तावीज़ तो लाई नहीं हूँ। किचन में झांका, मगर हर तरफ सन्नाटा था। आवाज़ के साथ साथ खटका भी महसूस हुआ। देखा तो स्टोर का दरवाज़ा हिल रहा था। पहली दफ़ा मुझे खौफ का एहसास हुआ। आवाज़ स्टोर से आ रही थी। ये आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सड़क पर बासानी सुनी जा सकती थी। इसका मतलब था कि लोग सच कहते हैं, यहाँ ज़रूर किसी जिन या बदरू का बसेरा था। मैं और एहसान चंद लम्हे यूं ही खड़े रहे और जब आवाज़ में मज़ीद तेज़ी आई तो हमने किचन का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और ख़ुद लाउंज की बजाय आखिरी कमरे में शिफ्ट हो गए। बच्चे के रोने की आवाज़ तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। यूं लगता था कि कोई बच्चा खौफज़दा होकर मदद को पुकार रहा हो। सारी रात हमने जाग कर गुजारी। सुबह एहसान ही किचन में गए, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। एहसान ने आगे बढ़कर किचन का दरवाज़ा खोल दिया, मगर अंदर वैसी ही खामोशी थी। मैं आज नाना के दोस्त के पास ज़रूर जाऊंगी एहसान। नहीं, हम ये घर ही छोड़ देते हैं यार। अरे नहीं, नाना के दोस्त बहुत बड़े आमिल हैं, वो हमें इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। उसी दिन अब्बास साहब आ गए। मैंने उन्हें रात का वाक़या बताया। उन्होंने कहा, भाभी कुछ दिन के लिए मेरे पास रहें, यहाँ उन बुज़ुर्ग को बुलवा लेते हैं। एहसान ने भी तायद की। मैंने बच्चों को साथ लिया और अब्बास भाई के पास आ गई। एहसान भी रात को हमारे पास आ गए। दूसरे दिन एहसान दुकान पर गए जहाँ अभी तक काम हो रहा था। एहसान उसे एक बड़ा जनरल स्टोर बना रहे थे, इसलिए उसके लिए लकड़ी का काम जारी था। जो ही एहसान वहाँ गए, कई लोगों ने बच्चे के रोने की दास्तान सुनाई। 3-4 रात हम लोग अब्बास साहब के घर रहे। उन 3-4 दिनों में मुसलसल रोने की आवाज़ें आती रहीं।
مجھے گھر بہت پسند تھا، پھر اتنی محنت سے صاف کر کے کسی حد تک سیٹ بھی کر لیا تھا، اس لیے دل چاہ رہا تھا کہ اسی میں رہوں، مگر پراسرار بچے کے رونے کی آواز مانے تھی۔ آخر میں احسان کو لے کر نانا کے پاس گئی۔ نانا کو سارا واقعہ معلوم ہوا تو وہ ہم لوگوں کو ان بزرگ کے پاس لے گئے۔ ان بزرگ نے بڑی تسلی سے بات سنی، پھر خود ہمارے ساتھ اس گھر میں آئے۔ انہوں نے سٹور میں جھانکا، دروازہ پھر کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا اور پھسلن تھی۔ بزرگ نے دروازے پر کھڑے کھڑے کچھ پڑھا اور اندر داخل ہو کر بلب منگوایا۔ احسان نے بلب لا دیا۔ سٹور میں بلب لگا کر روشنی کی گئی۔ ہر طرف چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بستر، چارپائیاں، خالی بکسے، کنستر اور کچھ ڈبے پڑے تھے۔ بزرگ پڑھتے رہے اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ اچانک ایک ڈبہ لڑکا اور سناٹے میں اس کے لڑکنے کی آواز گونج گئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا تو وہاں ایک بہت موٹا چوہا اپنی لال لال آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ بزرگ نے چھڑی اٹھائی تو وہ کسی کونے میں دبک گیا۔ پھر غور کرنے پر پتہ چلا کہ ایک نہیں، وہاں کئی چوہے موجود ہیں۔ بزرگ نے اس طرف قدم بڑھائے جہاں کچھ رضائیاں یا گدے پڑے تھے جو اب بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ایک گدا اٹھایا تو اس کے نیچے کسی بچے کے ڈھانچے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ ہڈیاں پوری بھی نہیں تھیں۔ میں نے بغور فرش کو دیکھا تو وہاں مٹی کی موٹی تہ نظر آئی اور کچھ ہڈیاں بھی نظر آئیں۔ غالباً ان چوہوں نے اس ڈھانچے سے ہڈیاں نکال کر کتری تھیں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ان بزرگ نے سٹور صاف کروایا، سامان باہر نکالا گیا، ساری ہڈیاں جمع کی گئیں جو کہ دیواروں کی جڑوں میں بھی پڑی تھیں۔ پھر بزرگ ان ہڈیوں کے پاس آنکھیں بند کر کے آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ان ہڈیوں کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا، چوہوں کو مار دیا گیا، سٹور کا سامان پھینک دیا گیا۔ بعد میں بزرگ نے بتایا کہ بچہ کسی وجہ سے سٹور میں رہ گیا اور ماں باپ گھر سے چلے گئے۔ اس بچے کی موت رات کے اندھیرے اور سناٹے میں دہشت کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ بعد میں تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ بچے کے ماں اور باپ دونوں جلدی میں کسی عزیز کی موت میں جانے کو نکلے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سمجھتے رہے کہ بچہ ان کے پاس ہے۔ جب رات آدھی بیت گئی اور ٹرین منزل کے قریب پہنچ گئی تب ماں کو احساس ہوا کہ بچہ نہیں ہے۔ اسے نہ صرف احساس ہوا بلکہ یہ یاد آ گیا کہ بچہ کچن کے سٹور میں تھا اور وہ جلدی میں سوئچ بھی بند کر آئی تھی۔ اس احساس سے کہ آدھی رات کو اندھیرے میں بچہ خوف سے ماں کو پکار رہا ہوگا اور چونکہ کچن بھی باہر سے بند ہے اس لیے وہ دروازہ نہیں کھول سکے گا، ماں مارے خوف اور پریشانی کے شوہر کو بھی اصل بات سے آگاہ نہیں کر سکی اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ شوہر یہ سمجھا کہ موت کی افراتفری میں بچہ ٹرین ہی میں کہیں کھو گیا ہے اور کوئی اس کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ وہ بھی اپنے حواس گم کر بیٹھا۔ دوہرے صدمے نے اس کے حواس چھین لیے، جبکہ یہاں رات کے سناٹے میں بچے نے چیخ چیخ کر جان دے دی مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ شاید مایوس ہو کر وہ خوف سے بچنے کے لیے بستروں میں گھس گیا تھا جہاں خوف اور دہشت نے اسے مار دیا اور بچے کی روح بھٹکتی رہ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اندھیرے اور سناٹے میں اس بچے کے چیخنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ جب تک دروازہ کھلا رہا، روشنی جاتی رہی، گھر میں لوگ موجود رہے، اس بچے کی روح مطمئن رہی، مگر اندھیرا ہوتے ہی وہ پھر بے چین ہو گئی تھی۔ میں آج بھی جب اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں۔ یہ ساری تفصیل ان بزرگ کی زبانی پتہ چلی تھی۔ ہم نے شہر میں ان صاحب کے بارے میں جاننا چاہا تاکہ ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کر سکیں، مگر بزرگ کے کہنے کے مطابق وہ واقعی حواس کھو چکا تھا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ احسان کی دکان بھی چل نکلی۔ آج کل تو یہ علاقہ گنجان آباد ہو چکا ہے، آس پاس فلیٹس ہی فلیٹس نظر آتے ہیں، ایک دکان کی بجائے پوری مارکیٹس آباد ہیں۔ ہم نے وہ گھر خرید لیا تھا، گو اب گھر میں کچھ پراسراریت نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نے نہ تو کبھی سٹور کی لائٹ بجھائی نہ دروازہ بند کیا۔ مجھے لگتا ہے اگر دروازہ بند کر دیا تو وہ معصوم بچہ پھر ڈر جائے گا اور رونے لگے گا۔